Assalamu alaikum everyone. So let's begin. So I would start with a little incident कि एक दफ़ा ऐसे हुआ, a little fine morning. Professor asked me in his called me in his office and he handed over me this beauty. तो सर ने कहा कि now this is yours and go on capture images. इनको आप लेबल करें and then find out कि which lesions are to be biopsied and किनको हमने नहीं biopsy करना. So I was in a fix कि अब क्या किया जाए. I didn't know how to operate it. और अगर मैं सीख भी लूँ, मतलब it was very easy to operate this dermoscope. Actually we have two of them. तो ऑपरेट तो मैं कर लूँ, लेकिन जब मैंने इसकी टर्मिनोलॉजीज देखी तो आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि हाउ टू इंटरप्रेट द लीजन्स, हाउ टू लेबल देम इफ दे आर मैलिग्नेंट और इफ दे आर कंसर्निंग, हाउ डू आई डिसाइड ऑल इट ऑन माय ओन. तो देन आई फाउंड आउट सम रियली गुड पीपल और मैंने उनसे फिर ट्रेनिंग ली. सो दीज आर माय मेंटर्स. एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज Dr. Iris Zalaudik, and she is currently the president of IDS. Then are the other people like Ashfaq A. Margoob, Gipi Argenziano, Emilios Lalas, और बहुत सारे जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा डर्मोस्कोपी सीखी. And these are the people who have actually devoted their lives to dermoscopic skills, and they are pretty much busy all the time in training people in the seminars and certifications and diplomas, and even they take you up to master levels. So this is where I belong, my mother institute, King Edward Medical University. And this is how we perform dermoscopy in our department. We have trained so many trainees of ours, and this is a dedicated room where we collect all the data and we capture images, we label them unanimously. And then we always have discussions on different images. And then we also tend to publish studies. So let's come to the topic. This is basics of dermoscopy. Brigadier Shah has very rightly described so many features of many dermatoses, making my job a little easier. I hope everybody can see my presentation. If yes, you can. No, Dr. Aisha, slides are not running in the way you are talking. इसको kindly the revisit कर लें. जी सर. Okay. So हम यहाँ पे थे. The question was that why do I need a dermatoscope if I already have a very good handy lens? So on the left hand side, as you can see that these are two clinically similar images and both of them have been are being seen with a hand lens. But on the right hand side, you can see that the top image is showing a network-like pattern. जैसे बगेडिया साहब ने बताया था, a network-like pattern which is not concerning at all, and we are happy to see it with a dermatoscope. But on the lower side, this image is being seen with the dermatoscope. Both the lesions were clinically similar, but as you can see in the dermatoscopic image, on the periphery of the lesion, there are few dot-like structures. And these dot-like structures, when they are magnified, they are seen to be as peripheral globules. Peripheral globules क्या होते हैं? We are going to towards the terminology in a minute. लेकिन this is a very concerning sign, and it is one of the diagnostic features of melanoma. So both the clinically similar images and one turns out to be a melanoma. So this is the significance of dermatoscope, and this is the answer to the question that why do I need a dermatoscope if I already have a handy lens? So I think almost every one of our PGs should have at least one dermatoscope in department so that everyone could see the concerning images with a dermatoscope if they are really dysplastic or concerning. So the learning objectives today would be what is a dermatoscope, how to perform it, which is really very easy. And thirdly, we are going to learn to identify basic patterns and what could be the scope of dermatoscope as we titled this session. It was introduced in 1920 by this gentleman, John Sefier, and it was introduced 27 years before Pakistan came into being. और इसके बाद बहुत साल लगे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में. और असल में डर्मेटोस्कोप करती क्या है? व्हाट डज इट डू? ऑन द टॉप इमेज एज यू कैन सी कि ये जो इंसिडेंट लाइट पड़ती है एक इमेज से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में वापस, then it leads to the magnification of that very object which is under question, plus we illuminate the object at the same time, and thirdly the colors are added to the image depending upon the position. जैसे सर अशर ने बताया था
के क्रोमोफोर्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट वेरियस डेप्थ्स एंड इनकी डेप्थ्स डिसाइड करती हैं कि इनका फाइनल कलर क्या होगा इमेज में। तो इन तीनों चीज़ों के मिलने से आप डर्मेटोस्कोप की फिजिक्स को समझ सकते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, इल्यूमिनेशन एंड डेप्थ. These three things combined lead you to a good quality image seen with dermatoscope. Once again to the physics, ये आपकी light, when it comes from the light source, it is vibrating in all the directions. And when you put up a polarizer in the way, the light waves that are vibrating in only one direction, they are called as the polarized light. And this is the light which we are interested into while talking of polarized dermatoscopy. And this is pretty much the same principle which is employed in wearing the polarized sunglasses that usually block all the lights vibrating in different directions apart from those, and they only allow the light waves that are vibrating perpendicular to the highway. So only those waves are allowed to pass through your sunglasses or goggles, and then you can better see the road. Talking of the different types of dermatoscope, जैसे कि दिमाग में question आ रहा था, तो there are two types, contact dermatoscopy and non-contact one. So in contact dermatoscopy, obviously we are going to put up the dermoscope on the lesion and then we are going to bend down to see what the lesion exactly is. However, in the non-contact dermatoscopy, the hand piece is different and the hardware which is to be attached to the laptop or the system is different. So there is a liberty of movement and you can sit up, you can make the patient sit at a different place, you can capture the image and it is a wireless connection, very easy. We do have both these dermatoscopes in our department. Initially, we had this one, which was only polarized, and then we bought a contact dermatoscope, which can toggle between the polarized and the non-polarized modes. अब इन दोनों की significance क्या है? Every lesion is to be seen with both polarized as well as non-polarized dermoscopy because some of the features are better seen with polarized light and some features of some dermatoses are seen better with the non-polarized one. Usually the polarized, the contact dermoscopy is good at seeing the upper dermis. इसमें non-polarized light है and the non-polarized light is going to be good to see the upper parts of the dermis. And it is very good to see the blue-white veil, which is very famous for the melanoma identification and Melia-like cysts for seborrheic keratosis. So why is it good to see the superficial structures? क्योंकि ये नॉन पोलराइज्ड है, द लाइट जो नॉन पोलराइज्ड है वो ज्यादातर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन, व्हाइल द पोलराइज्ड लाइट इज द वन, ये राइट हैंड साइड पे, विच इज गोइंग टू गो डीप डाउन इनटू द स्किन और रिफ्लेक्शन बहुत कम होती है, मोस्टली इट इज रिफ्रैक्टेड, गोज डाउन और फिर वापस आती है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ इन अ मिनट. So this is the non-contact dermatoscopy and it looks preferentially deeper dermis up to 100 micron. This is the principle जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि light source से जब skin के ऊपर light पड़ती है तो some of the light is reflected back. This reflected back light, इसकी वजह से you tend to identify the lesion on the skin. This principle is employed in the non-polarized light. तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी और कुछ स्कैटर हो जाएगी. दिस इज द लाइट स्कैटर्ड. वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू द स्कैटर्ड लाइट पार्ट जब हम मेलानोमा की बात करें. अब ये पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी क्या होती है कि इसमें लाइट सोर्स तो बिल्कुल वैसा ही है, इसमें से लाइट आती है, द लाइट वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस एंड देन वी पुट अप अ पोलराइजर ऑन द वे. उसके बाद जो लाइट नीचे एमिट होती है, इट इज वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, सो दैट मीन्स इट इज पोलराइज्ड लाइट. व्हेन द पोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक्स द स्किन और ये एपिडर्मिस डर्मिस में जाती है, सम ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. अब ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये अपनी पोलराइज्ड कैरेक्टर को लूज कर देती है. देन अगेन द लाइट इज partially polarized और ये tends to vibrate in all directions. We put up a second polarizer in the way before it strikes our eye और इसके बाद again we convert it into the polarized light. और ये जो लाइट हम वापस इधर से दोबारा से पोलराइज कर रहे हैं, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर आई है. इट हैज स्ट्राइक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स
ऑन द वे, क्योंकि जो लाइट आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्ट्राइक होके नहीं आती, ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो नॉन पोलराइज्ड होती है. पोलराइज्ड लाइट हैज गॉट अ पोटेंशियल टू गो डीपर डाउन, और जितना ये अंदर जाएगी उतनी स्ट्रक्चर्स को स्ट्राइक करेगी. और ये भी याद रखें कि फर्स्ट पोलराइजर एंड सेकेंड पोलराइजर दे आर प्रेजेंट एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर. सो फर्स्ट पोलराइजर से जब लाइट आती है, इट इज वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन. व्हेन इट स्ट्राइक्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो अपने एंगल्स चेंज कर करके इट हैज टू चेंज इट्स एंगल टू 90 डिग्रीज. और ये 90 डिग्रीज का एंगल तभी चेंज होगा जब लाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ स्ट्राइक करेगी. जब वो 90 डिग्री का एंगल चेंज हो जाएगा, ओनली देन दैट लाइट इज गोइंग टू पास थ्रू द सेकंड पोलराइजर. बाकी वाली जो लाइट सारी रिफ्लेक्ट होगी या विदाउट स्कैटर आएगी, वो यहाँ भी आके ब्लॉक हो जाएगी. सो हम सिर्फ उस पार्ट को देख पाएंगे जो नीचे से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स के साथ स्ट्राइक होके अपने एंगल्स चेंज करके 90 डिग्री पे दूसरे पोलराइजर में से गुजर के आई है. So in this way, we'll be able to see the structures deeper down, or polarized dermoscopy is very good at defining structures that we can't see with the non-polarized one. For example, अब आप इधर देखें कि this is the melanoma and this same lesion is seen with polarized dermoscopy, and on the right side this is the non-polarized dermoscopy. A polarized dermoscopy के ऊपर you can easily identify the short white lines, और जिनको हम crystalline कहते हैं. They are the bands in the dermis, fibrous bands, and this is one of the markers of invasion of melanoma. And actually the research today is based on using this marker, using this as a marker of invasion. So dermatoscopically, white lines or crystallines are being employed as a marker of invasion of melanoma, and they are pretty much seen with the polarized light. They are not seen with the non-polarized light, as you can see on the right hand side. Similarly, if you talk of seborrheic keratosis, तो left hand side पे we are having the image with the polarized light, and on the right hand side with the non-polarized light. अब non-polarized light पे अगर आप देखें तो these shiny little dots, जैसे कि सर अशर ने भी दिखाए थे, milia like cysts, they are very much visible on the right hand side when we see with the non-polarized variety of dermoscope. क्यों? Because they are superficially located. अब now go back to the histology which Sir Asher told shortly. हम दोबारा भी इसके ऊपर जाएंगे कि histologically as you can imagine कि seborrheic keratosis में milia like cysts correspond to the horn cysts, और ये superficial part of epidermis में हैं, which are better seen with the non-polarized variety. ये जो fibrous band हैं जिनको हम crystalline या short white lines कहते हैं, they are located in the deeper dermis and they are better seen with the polarized dermoscope. So I hope up till now आप लोगों को काफी clear हो चुका है कि what is a polarized light, इसकी physics क्या है, and what is the non-polarized light और इसकी physics क्या है. और आजकल चूंकि dermoscopes combined आ रही हैं, for example ये जो हमारे पास dermoscope है, I'm going to show you, ये वाली, तो इसमें एक बटन है जिससे हम इसकी एट द सेम टाइम वी कैन टॉगल बिटवीन द, एक दफा बटन आप प्रेस करते हैं, इट लुक्स एट द इमेज नॉन पोलर विद द नॉन पोलराइज्ड लाइट, और दूसरी दफा जब आप इसको प्रेस करते हैं तो इट लुक्स एट द इमेज विद द पोलराइज्ड लाइट. सो यू कैन सी अ सिंगल लीजन विद बोथ पोलराइज्ड एज वेल एज नॉन पोलराइज्ड लाइट, और इस तरह हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स का पता चल जाता है जो अदरवाइज नजर नहीं आ रही विद द नॉन पोलराइज्ड लाइट. ये एक और टेबल मैंने बनाया आप लोगों के लिए जस्ट टू एम्फेसाइज अगेन ऑन द फीचर्स सीन विद नॉन पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी एंड पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी. इसमें आप देख सकते हैं कि मेलानिन इज बेटर सीन विद पोलराइज्ड वन. रेड और पिंक विच इज द कलर ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स आर एज दे आर प्रेजेंट डीपर डाउन, दे आर बेटर सीन विद द पोलराइज्ड लाइट. Blue white veil as it is due to the orthokeratosis, which is a superficial thing to see, so it is better seen with the non polarized light. Blue white, अच्छा इसको आप छोड़ दें. Chrysalis or white scar, so chrysalis or white scar like things, they are present deeper down, ये represent करते हैं dermis के parts को, deep dermis को, so they are better seen with the polarized light. Vessels with the polarized variety, और milia like cysts चूंकि superficial को correspond करते हैं changes को, so इसलिए they are better seen with the non polarized dermoscopy. अब क्वेश्चन ये है, जैसे मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने पूछा कि which dermoscope to buy. There are so many brands.
the top brands I have written here. अब जो टॉप मोस्ट हैं ये डर्म लाइट और हाइनी डेल्टा हैं जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, जिनके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस है, और इनमें भी आगे बहुत सारे इनके मॉडल्स होते हैं. इट इज़ मुझे किसी ने कहा कि मुझे हमें ना सेशन में कोई एक डर्मोस्कोप रेकमेंड करते हैं, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं. जैसे ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि आप टोयोटा की गाड़ी ले लें, पर कौन सी ले लें. तो इनको आप देखें, अगर आपने डर्मोस्कोप बाय करनी है तो आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए. बाकी मैंने जो चीज़ें बताई कि आपको कंसीडर करनी है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट. अब मसला ये है कि हमने डर्मेटोस्कोप को देख लिया कितनी टाइप की होती है, हमने ले भी ली, और हमने प्रिंसिपल्स भी समझ लिए, उसकी फिजिक्स भी समझ ली कि डर्मोस्कोप पोलराइज नॉन पोलराइज क्या है. इसके लिए इसके साथ इमेज कैप्चर करना इज़ वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू पुट योर डर्मोस्कोप, उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, जैसे आप मोबाइल फ़ोन से पिक्चर लेते हैं और फिर उसको कैप्चर कर लें. यू कैन एक्चुअली अटैच योर डिवाइस टू अ सेल फोन थ्रू दिस कनेक्टर, और ये बड़ा प्रिटी मच सिंपल काम है. लेकिन अब हाउ टू इंटरप्रेट, दिस इज द मेन थिंग जिसने मुझे इंसाइट किया कि मुझे क्वालिफिकेशन लेनी चाहिए. एंड दिस इज द मेन थिंग. कैप्चर इमेजेस करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी टेक्नीशियन कर सकता है. यू कैन हैव समबडी फॉर दिस जॉब. लेकिन इनको इंटरप्रेट करना, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ डर्मेटोस्कोपी, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ टुडेज सेशन. तो अगर आपको इंटरप्रेट करना आ जाएगा, देन फिर आपको मजा आएगा इमेजेस कैप्चर करने में. अब वर्ल्ड वाइड जो मेथड्स यूज होते हैं डर्मेटोस्कोपिक इमेजेस को इंटरप्रेट करने के, लेबल करने के, वो ये हैं जो मैंने आपको बताए. और इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, दे आर द रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस एंड क्योज एंड क्लूज मेथड. तो इन दोनों के ऊपर हम आज का सेशन बेस करेंगे, क्योंकि ये दिस बिलोंग्स टू हिस्ट्री. क्लासिकल पैटर्न एनालिसिस केम इन 1990s, उसके बाद ABCD 1994, 7 पॉइंट चेकलिस्ट 1998, मेंजिस मेथड 2004, 3 पॉइंट चेकलिस्ट 2015, और उसके बाद 2016 एंड ऑनवर्ड में रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस, क्योस एंड क्लूज. सो आजकल की सारी जो डर्मेटोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन दीज टू मेथड्स, एंड वी आर गोइंग टू थ्रो अ लाइट ऑन दीज टू मेथड्स. मेरी स्क्रीन बड़ी आ रही होगी सबको? अब मेरा क्वेश्चन ये था अपने आप से कि हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू पीपल डर्मोस्कोपी. तो देन मैंने ये सोचा कि मैंने कैसे पढ़ी थी. तो मैंने इन दो तरीकों से पढ़ी थी. माई ट्यूटर्स taught me like this. There was an analytic approach and the other was heuristic approach. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Analytic approach means it is more verbal, it is more descriptive. यानी हम आपको डिस्क्राइब करते हैं कि there is a line, there is a network, there is a hole, there is a dot, there is a clod, और उनके ऊपर आप अपनी डायग्नोसिस को बेस करते हैं. जैसे हम डर्मेटोलॉजी में अदरवाइज हम अपने डायग्नोसिस बनाते हैं कि जी एरिथीमेटस फिश लाइक स्केल्स हैं और थिकनिंग है स्किन की, तो हम डायग्नोसिस बनाते हैं. इसी तरह इन पॉइंट्स के ऊपर. अब ये जो दूसरी वाली है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग. ह्यूरिस्टिक अप्रोच ये है कि यू आर शोन एन इमेज और आपकी आंखें उसके साथ एक्लेमेटाइज होती हैं. योर ब्रेन टेंड्स टू रिमेंबर दैट इमेज just like an elephant, and then when the similar image is shown to you in future, तो you tend to pick up in a millisecond कि ये वो चीज़ है जो मुझे दिखाई गई थी. This is the heuristic approach and this is the analytic approach, जिसमें analytic approach is more based on algorithms. टिपिकल एल्गोरिदम्स हैं, हम अभी उस पर बात करेंगे. रोड मैप्स की तरह है कि आपको एक प्रॉपर चैनल आपको आगे लेके जाना है. And this is the proper method. However, heuristic approach is good if the time is short, और अगर आपको बहुत ज़्यादा wide dermatoscopic images के साथ वास्ता नहीं है, you only are supposed to look for selected images, तो उसमें आप heuristic method को employ कर सकते हैं. So this is the elephant. जैसे मैंने अभी बताया कि if you are shown an elephant, your brain will tend to memorize it. लेकिन ये जो ब्लाइंड पीपल वाली स्टोरी आपने भी सुनी होगी, बच्चों की बुक्स में होती है. द ब्लाइंड पीपल आर वन इज लुकिंग एट द टीथ एंड वो कहता है कि ये स्वॉर्ड की तरह, स्पीयर की तरह है. फिर जो है जो कान को देखता है वो कहता है जी इट्स लाइक अ फैन. लेकिन जब आपको एलिफेंट एक दफा दिखा देंगे, यू विल टेंड टू मेमोराइज इट एंड यू विल pick up when it is shown to you in future, just like you remember the face of your brother or a sister, but when you are asked to really show the features कि आप उनको describe करें, you are very bad at describing your brother or a sister, but your brain tends to identify their pictures in a microsecond. This is pretty much the principle in elephant approach, और इस पे पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं एलिफेंट अप्रोच पे. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ.
तो ये एक टीचिंग डर्मेटोस्कोपी ऑफ पिगमेंटेड स्किन ट्यूमर्स इन द नोविसेस, and it was actually a comparison of analytic and heuristic approach. ये जो dark colored की bar है, this belongs, it is representing the females and the lighter bar is representing the males. यहाँ पे इन्होंने एनालिटिक ह्यूरिस्टिक अप्रोच को देखा और यहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे एनालिटिक अप्रोच को देखा मेल्स और फीमेल्स में. अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखते हैं कि फीमेल्स आर दे आर परफॉर्मिंग बेटर, दे आर परफॉर्मिंग बेटर इन द ह्यूरिस्टिक अप्रोच. मतलब फीमेल्स को एक दफा आप एलिफेंट दिखा दें, अगली दफा आप एलिफेंट दिखाएंगे वो बड़ी जल्दी पिक कर लेंगी. एंड ऑन द राइट हैंड साइड मेल्स आर परफॉर्मिंग बेटर, और ये मेल्स जो हैं ये एनालिटिक वाली जो अप्रोच थी टीचिंग की उसमें अच्छा परफॉर्म करे थे. मतलब इनको ह्यूरिस्टिक में देवर अ लिटिल परफॉर्मिंग लेस देन फीमेल्स, लेकिन जो एनालिटिक अप्रोच थी उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करे थे. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, तो आई थॉट कि ये आपके साथ शेयर करूँ. अब बिफोर गोइंग फर्दर हमें ये बात डिसाइड करनी है कि वेदर द लीजन इज केराटिनोसिटिक और मेलानोसिटिक. तो एपिडर्मिस में दो तरह के सेल्स हैं, एज यू नो. दिस गाय इज अ मेलानोसाइट, इट हैज गॉट डेंड्राइट्स एंड इट कैन ट्रांसफर इट्स पिगमेंट इनटू द केराटिनोसाइट्स टू मेक देम पिगमेंटेड एज वेल. So if the lesion is pigmented, you actually don't know whether the lesion is belonging to keratinocytes or melanocytes. ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि इनके लीजन्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. सेब्रिक केराटोसिस, सोलर लेंटिगो, बीसीसी, एससीसी, दे ऑल बिलोंग टू केराटिनोसाइट. लेकिन ऑन दी अदर हैंड साइड नीवस एंड मेलानोमा बिलोंग टू मेलानोसाइट. अब ये हमें डिसाइड करना है. और जब हम एक लीजन को देखते हैं, बेसिकली डर्मेटोस्कोपी इज गोइंग टू पिक द कलर्स. इट इज गुड फॉर द पिगमेंटेड स्किन लीजन्स. अगर कहीं पिगमेंट ही नहीं होगा तो वो डर्मेटोस्कोप उसको ज्यादा पिक नहीं कर पाएगी. इट इज पिगमेंट एंड नॉन पिगमेंट, पिगमेंटेड एरिया एंड नॉन पिगमेंटेड एरिया, जिसके कंट्रास्ट से डर्मेटोस्कोप टेंड्स टू पिक अप द लीजन्स. तो पिगमेंटेड लीजन इज नॉट नेसेसरीली टू बी अ मेलानोसिटिक एज वेल. मेलानोसिटिक लीजन से हमारी मकसद ये है कि द लीजन इज मेड अप बाय मेलानोसाइट्स, एंड पिगमेंटेड लीजन का मतलब ये है कि द लीजन कुड बी मेड बाय द मेलानोसाइट्स और इट कुड बी फॉर्म्ड बाय द केराटिनोसाइट्स. अब जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये इमेज आप देख रहे हैं, ऑन द टॉप राइट साइड देयर इज द टिपिकल नेटवर्क in the periphery. However, in the center is the atypical network. We'll get to that in a moment. And there is also structureless area which is extending to the periphery. There are also some grayish to bluish dots in the center. So this is asymmetrical lesion and it qualifies to be a malignancy. It is consistent with the chaotic behavior of the malignant tissue. तो ये जो है, हम जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, इट सीम्स लाइक अ मेलानोमा. लेकिन इस तरफ अगर आप ये लीजन देखें तो इसमें ब्लैक लाइंस हैं जो कि कन्वर्ज भी हो रही हैं और वैसे भी पेरिफेरी के ऊपर शॉर्ट ब्राउन लाइंस हैं. और इसके अलावा देयर इज अ स्ट्रक्चरलेस एरिया इन द सेंटर. अगर आप दो लाइंस ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, एंड अगर इस तरह भी लाइन ड्रॉ करें तो फिर अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द इमेज आर नॉट कंसिस्टेंट, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, सो दे आर नॉट सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल ये भी है, लेकिन ये केराटिनोसाइट का लीजन है. इट इज एन एससीसी, पिगमेंटेड एससीसी, और ये मेलानोमा है. तो ये मेलानोसाइट का बना हुआ है, ये केराटिनोसाइट का लीजन बना हुआ है. लेकिन आप देखें कि सिमिलैरिटी इनमें, बोथ ऑफ देम विल शो पिगमेंट. तो आपको देखने में सिर्फ पिगमेंट नजर आएगा, लेकिन इनके जो क्लूज और जो टिपिकल फीचर्स हैं उनकी बेस के ऊपर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हैं तो दोनों मेलिग्नेंसीज, लेकिन ये कौन कौन सी मेलिग्नेंसीज हैं. अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, which is specifically on the method of interpretation. And the first method which we are going to discuss is the revised pattern analysis. जैसे मैंने बताया कि it is very famous, world widely employed, और इसके ऊपर आज की रिसर्च ज़्यादातर इसके ऊपर बेस्ड है. इसमें आपको 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं. ये मैंने आपके लिए खुद ड्रॉ किए हैं, मतलब ये ऑब्वियसली रियल नहीं है, अभी हम आपको रियल भी दिखाएंगे. This is a stepwise approach. Revised pattern analysis, remember, this is a stepwise approach. Number 1 पे ये है, number 2 पे ये है, number 3 पे ये है. आप छुट्टे ये नहीं कह सकते कि the lesion has got blue clots. No, आपको एक सिस्टम फॉलो करना है. आपको पहले ये डिसाइड करना है कि लीजन सिमेट्रिकल है या नहीं है. फिर आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें पैटर्न कौन सा है. अभी हम स्टेप्स के ऊपर जाते हैं, बट इट हैज टू बी स्टेप वाइज. ये हैपहैज़र्ड नहीं हो सकता. सेकेंडली, इट इज एल्गोरिथमिक. ये भी अभी आपको पता चल जाएगा.
और ये पिगमेंटेड लीजन्स के ऊपर बेस्ड है, नॉन पिगमेंटेड लीजन्स को आप नहीं देखेंगे इससे। क्लियरली डिफाइंड जियोमेट्रिक टर्म्स हैं इसमें, जैसे कि लाइंस, स्यूडोपोड्स, सर्कल्स, क्लॉड्स एंड डॉट्स, और ये पूरे का पूरा डर्मेटोस्कोपी में इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ है तो वो है स्ट्रक्चरलेस पैटर्न। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो द पैटर्न इज स्ट्रक्चरलेस। लाइंस जो होती हैं दे आर फर्दर ग्रुप्ड। अगर ये सिंगल लाइन तो होती नहीं है, अगर ये ग्रुप्स में इन अरेंजमेंट्स में हैं तो इनके नाम डिफरेंट हैं। दे कैन बी रेडियल, दे कैन बी ब्रांच्ड, दे मे बी रेटिकुलर, ये सबसे कॉमनली सीन इसका पैटर्न है। दे मे बी पैरेलल, जैसे कि हमारे एक्रल एरियाज में दे आर पैरेलल लाइन सीन, एंड दे मे बी कर्व्ड। तो याद रखें कि लाइंस जो हैं ये 5 तरह की ग्रुपिंग में आ सकती हैं। And apart from lines, there are pseudopods, circles, clods and dots. इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा, यही चीजें ऊपर नीचे होके आपको नजर आएंगी। जैसे कि अभी हमने बात की 5 टाइप्स की, मैं दोबारा दिखा दूं आपको कि ये हम 5 टाइप की लाइंस की बात कर रहे थे, और लाइंस के अलावा बाकी चीजें ये हैं सूडोपोड्स। अब इनकी डेफिनेशन जो है ना वो बिल्कुल याद रखने वाली चीज नहीं है। डिसर्नेबल लेंथ की एक लाइन है, अ डिसर्नेबल लेंथ लाइन विच इज एंडिंग एट अ ग्लोबुलर एरिया। द सर्कल्स जो दरमियान से एम्प्टी हैं, क्लॉड्स जो हैं वो सॉलिड हैं और मल्टीपल शेप्स के हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर। डॉट्स जो हैं वो सॉलिड स्मॉलेस्ट डिसर्नेबल पार्ट जो है ना वो डॉट्स हैं। इनकी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनको देख लें, यू शुड आइडेंटिफाई देम। और अब हम इनकी एक एक करके डिटेल पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लाइंस अगर इस तरह हैं और ग्रुपिंग में वो रेक्टिकुलर हैं, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको इस तरह का नेटवर्क नजर आएगा। तो बेसिकली वो लाइन है लेकिन दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, और ये आपको इस तरह का नजर आएगा नेटवर्क। ये मेलानोसिटिक नेवाई में भी आपको नेटवर्क नजर आता है और मेलानोमा में भी नजर आता है, बट द नेटवर्क टाइप चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, द नेटवर्क चेंजेस फ्रॉम रेगुलर टू इरेगुलर। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ ये मैं थोड़ी देर तक आपको इसके ऊपर लेकर जाऊंगी, बट फॉर नाउ, lines if arranged in this pattern, this is seen dermatoscopically as network like this. अगर लाइंस पैरेलल अरेंजमेंट में है, राइट साइड पे देखिए, अगर लाइन पैरेलल अरेंजमेंट में है तो जैसे मैंने पहले कहा एक्रल स्किन के ऊपर, ये हमारी एक्रल स्किन है पाम्स एंड सोल्स की, एंड दीज आर द फरोज एंड दीज आर द रिजेस। द पिगमेंट इज लोकेटेड इन द फरोज, सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल फरो पैटर्न। एंड इफ द पिगमेंट इज सिचुएटेड हियर ऑन द रिजेस, देन वी कॉल इट एज PRP, विच इज पैरेलल रिज पैटर्न। दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ मेलानोमा, क्योंकि ये जो आपको व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं ये ओपनिंग है एक्राइन डक्ट्स की, एंड समहाउ मेलानोमास टेंड टू स्टार्ट अराउंड द एक्राइन डक्ट्स, और फिर यहाँ पे पिगमेंट पूरा रिजेस में भर जाता है। सो PRP और पैरेलल रिज पैटर्न इज डायग्नोस्टिक ऑफ एक्रल मेलानोमा। और ये जो पैरेलल फरो पैटर्न है ये बिनाइन पैटर्न है। सो लाइंस व्हेन प्रेजेंट लाइक दिस, दे आर एक्चुअली सीन डर्मेटोस्कोपिकली लाइक दिस। नेक्स्ट आप ये देखें कि लाइंस अगर इस तरह होंगी, रेडियल जिनको हमने कहा, तो वो डर्मेटोस्कोपिकली ऐसे नजर आएंगी। अब ये क्या चीज है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि लाइंस दे आर रेडियल एंड दे आर कन्वर्जिंग, दे आर नॉट मेकिंग एनी नेटवर्क, दे आर कन्वर्जिंग। ये जो है ना लीजन, दिस इज अ पिगमेंटेड BCC। जैसे सर अशर ने बताया कि लीफ लाइक एरियाज, तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज में हम लीफ लाइक एरियाज कहते हैं, लेकिन लीफ लाइक एरियाज की जो मतलब ये एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो है ना ये ज़्यादा प्रिफर्ड लैंग्वेज नहीं है डिस्क्रिप्शन ऑफ डर्मेटोस्कोपी में। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस में जो एनालिटिकल अप्रोच है जिसमें कि आप ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव के ऊपर जाते हैं, तो उसमें हम कहते हैं लाइंस पैरेलल, लाइंस रेडियल, कन्वर्जिंग। तो ये जो 3 लफ्ज हैं, लाइंस रेडियल कन्वर्जिंग, ये फीचर है पिगमेंटेड BCC का। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखने के लिए कि लीजन सिमेट्रिकल है या नहीं सिमेट्रिकल है, तो एक ही मेथड है। यू इमेजिन कि आप 2 लाइंस परपेंडिकुलर इमेजिन करें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और उसमें दोनों साइड्स के इमेजेस फिर आप देखें। इफ दे आर मिरर इमेजेस तो वो सिमेट्रिकल हैं, अगर नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल है। ये लीजन भी एसिमेट्रिकल है और ये पिगमेंटेड BCC है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि लाइंस अगर कर्व्ड हैं तो फिर कैसे वो नजर आएंगी, फिर वो ऐसे नजर आएंगी। आई डोंट नो कि ये लीजन आपको सही तरह नजर आ रहा है या नहीं, बट दिस इज अ क्लियर वेरी वेल डिफाइंड लीजन, लाइट ब्राउन इन कलर, एंड इट इज शोइंग लाइंस, some curved lines as well on the periphery, moth eaten areas here on the lower hand side.
और ये है सोलर लेंटिगो, और ये जो लाइंस, कर्व लाइंस हैं, ये डायग्नोस्टिक होती हैं सोलर लेंटिगो का। अगर सर्कल्स नजर आए तो वो डर्मेटोस्कोपिकली ऐसे नजर आते हैं। अब दिस ऑन द राइट हैंड साइड इज अ पिक्चर ऑफ सूडो सर्कल्स। सूडो सर्कल्स हम इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज अ पैटर्न विच इज सीन ऑन द फेशियल स्किन मोर, क्योंकि फेस की स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा सीवेशियस ग्लैंड्स हैं, फॉलिकुलर ओपनिंग्स हैं, तो ये सूडो सर्कल्स नजर आते हैं। और ये जो ग्रेइश सर्कल्स हैं, पेपरिंग या ग्रेइश स्ट्रक्चर्स, ये अगर आप देखें तो डॉट्स मिलके स्ट्रक्चर्स, राउंडेड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। दे आर एक्चुअली around the hair follicles, and these gray dot like structures making up circles around the hair follicles, this is diagnostic for melanoma. तो अगर ये क्लॉड्स की शक्ल में हो पिगमेंट, जैसे मैंने बताया था सॉलिड हैं, मल्टीपल शेप्स के हैं, लेकिन इनके अंदर से एम्प्टी नहीं है, तो दे आर कॉल्ड क्लॉड्स। बेसिक 5 चीजें ही थी, उनमें से हमने लाइंस को पहले बता दिया, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सर्कल्स को बताया, सूडो, इनके ऊपर हम अभी आएंगे सूडोपॉड्स पे, और अभी हम हैं क्लॉड्स के ऊपर। तो क्लॉड्स ये B9 नेवाई में भी नजर, ये हीमेंजियोमा है, इसमें भी क्लॉड्स नजर आ रहे हैं रेड कलर के। ये एक ब्लू क्लॉड है BCC की स्लाइड में। ये बहुत सारे क्लॉड्स हैं B9 नीवस में, ये भी एक B9 नीवस है, और ये बहुत सारे क्लॉड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एसिमेट्रिकल लीजन है, सो दिस हैज टू बी अ मैलिग्नेंसी। सो दिस इज हाउ यू सी क्लॉड्स डर्मेटोस्कोपिकली। डॉट्स कैसे नजर आते हैं? ये डॉट्स नजर आते हैं, और डॉट्स क्यों नजर आते हैं? बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ मेलेनोसाइट्स हायर अप। जिस तरह सरशर की भी प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द पिगमेंट ऑफ द मेलेनोसाइट्स वी टेंड टू सी डिफरेंट कलर्स। तो ब्लैक जो है ना, दिस इज प्रेजेंट, समथिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, एंड व्हेन देयर इज पेगिटॉइड स्प्रेड ऑफ मेलेनोसाइट्स इन द एपिडर्मिस, दे यूजुअली आर सीन एज दीज डॉट्स। और ये भी एटिपिकल लीजन है, एसिमेट्रिकल लीजन है। इसमें आप देखें तो स्ट्रक्चरलेस एरियाज हैं विच आर आल्सो एक्सटेंडिंग टू द पेरिफ्री, देयर आर डार्क ब्राउन डॉट्स, और इसमें नेगेटिव नेटवर्क भी नीचे नजर आ रहा है। नेगेटिव नेटवर्क, जैसे सर ने भी बताया था, अभी हम इन अ मिनट वील गो इन डिटेल टू द नेगेटिव नेटवर्क एज वेल। सो दिस इज हाउ द डॉट्स आर सीन। अब आपको एक रूल बताना है मैंने, दिस इज रूल ऑफ 20, इट्स कॉल्ड रूल ऑफ 20। सो आपने रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस में देखा कि किस किस टाइप की चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। आपको लाइंस, डॉट्स, क्लॉड्स, सूडोपोड्स, सर्कल, ये 5 चीज़ें नज़र आती हैं, और लाइंस फिर 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में नज़र आती हैं। लेकिन इनके बाद फिर आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि एक लीजन के अंदर पैटर्न है क्या। सो रूल ऑफ 20 इज दैट इफ अ टिपिकल पैटर्न is covering at least 20% of that lesion, only then we call it a pattern. यानी अगर एक छोटा सा 5% लीजनल एरिया के ऊपर पिगमेंट नेटवर्क पड़ा हुआ है, तो वी वोंट कॉल दैट एज अ पैटर्न, वी वुड कॉल इट अ क्लू। सो रूल ऑफ 20 आप याद रखें। इमेजिन करें कि एक लीजन का अगर 20% से ज़्यादा एरिया या अप टू 20% एरिया is showing a particular pattern, तो then we call it a pattern. अगर वो 20% से less होगा, we'll call it a clue. अब why is the sky blue? So clue and why is the sky blue? So हमें याद होगा, हमने पढ़ा था जी, टेंडॉल इफेक्ट पढ़ा था, उसमें why is the sky blue? Because light when comes in all the directions, और इसमें ये जो ब्लू लाइट है, ये 20 टाइम्स ज़्यादा इसकी जो है ना रिफ्लेक्शन है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कलर्स। सो दैट इज़ हाउ वी सी द ब्लू कलर। और अगर हम चांद पे बैठे होंगे तो फिर हमें एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स क्योंकि वहाँ पे नहीं है, एंड द लाइट इज बीइंग स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, तो वहाँ पे चांद के ऊपर चूंकि वो नहीं है एटमॉस्फेयर, सो वी टेंड टू सी ब्लैक स्काई। This is pretty much the principle involved in looking at the melanin at different depths. For example, ये repetition है, ये सर पढ़ा चुके हैं, ब्रिगेडियर सर ये पढ़ा चुके हैं, but ये मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, so I'll be quick at it. In the epidermis, looks as black, dermoepidermal junction brown, upper dermis gray, middle dermis or the lower part of the dermis, deep dermis blue. In the superficial part, keratin as yellow. White lines when they are present in the dermis, scar like area, ये white नजर आता है, and then red obviously is the blood vessels. So depending upon the location of the pigment, you tend to see different colors. ये क्यों ऐसे होता है? For example, if the melanin is there in the epidermis, all the incident light that falls on the melanin is going to be absorbed, nothing is reflected back, so you tend to see a black color or a brown color. अगर ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, for example at the dermoepidermal junction,
तो सारी लाइट जो पड़ी इसके ऊपर वो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन थोड़ी सी रिफ्लेक्ट बैक भी हुई और वो हमें नजर आई ब्राउन। अगर ये बहुत डीप था इन द डर्मिस तो लाइट जो पड़ी बहुत सारी एब्जॉर्ब हुई, लेकिन उसमें से स्कैटरिंग बहुत ज्यादा है क्योंकि लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को स्ट्राइक करना पड़ा। तो हमें पता है कि शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड 20 टाइम्स मोर देन रेस्ट ऑफ द लाइट कलर्स, सो व्हाट वी सी इज अ ब्लू। तो फिर हमें ब्लू नजर आती है मेलानिन इन द डीप डर्मिस। और सिमिलरली जब ये डिफरेंट तरह के मेलानिन के नेस्ट्स पड़े होंगे, नेस्ट्स ऑफ द मेलानोसाइट्स समवेयर इन द डर्मिस, तो वो हमें ग्रेइश ब्लू नजर आएंगे और ये आइसोलेटेड डॉट्स या क्लॉट्स की शक्ल में नजर आएंगे। सो आई होप आई क्लैरिफाइड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलर्स एंड डेप्थ्स. Coming back to revised pattern analysis, what is the step 1? By now, I hope I have clarified the concept of different structures to be seen in the revised pattern analysis, different colors to be seen in the revised pattern analysis. What do we call a pattern? What do we call a clue? हम क्यों pattern और clue कहते हैं, ये भी मैंने clear कर दिया। और हमने अब आगे जाना है स्टेप वाइज अप्रोच के ऊपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हैपहैजर्डली किसी लीजन को डायग्नोज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंटरप्रेट अ लीजन स्ट्रेट अवे गोइंग एट अ क्लू। क्लूज की बारी बहुत देर में आती है, पहले आप लीजन को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट स्टेप इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डर्मेटोस्कोपिक इमेज बाय रिवाइज्ड पैटर्न एनालिसिस वुड बी पैटर्न्स एंड कलर्स। सो पैटर्न्स एंड कलर्स में आप ये देखें कि अगर एक पैटर्न है, इफ होल द लीजन इज शोइंग अ सिंगल पैटर्न, यू इमीडिएटली गो एंड लुक फॉर कलर्स। सो आपकी आंखें किसी भी डर्मेटोस्कोपिक इमेज को पहले देखेंगी तो दे विल फर्स्ट सी एट द पैटर्न। पैटर्न क्या है? अगर एक पैटर्न है और एक ही कलर है तो फिर लीजन सिमेट्रिकल है, और अगर ज्यादा कलर्स हैं, अब ये सिमिट्री ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, ज्योमेट्रिकल सिमिट्री की बात नहीं हो रही। ये इसके ऊपर अभी हम दोबारा भी जाएंगे। सो यू सी वन पैटर्न वन कलर लीजन इज सिमिट्रिकल। वन पैटर्न फॉर एग्जांपल नेटवर्क पैटर्न आप ले लें, अगर उसमें कलर ज्यादा है, कहीं से नेटवर्क आपको ब्राउन नजर आ रहा है, कहीं से ब्लू नजर आ रहा है, ग्रे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो ये जो कलर्स हैं सिमिट्रिकली प्रेजेंट है, यानी लीजन के अंदर बिल्कुल सिमिट्रिकली सेंटर में ब्लू, साइड्स पे ब्राउन, इस तरह, और या फिर ये नॉन सिमेट्रिकली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एक पैटर्न ना नजर आए, आपको पैटर्न्स बहुत सारे नजर आए, जैसे कि हमने जितने भी अभी तक डर्मेटोस्कोपिक इमेजेस देखे हैं उसमें बहुत सारे पैटर्न्स थे, एक एक इमेज के अंदर ज्यादा पैटर्न्स थे, तो अगर ज्यादा पैटर्न्स हैं तो फिर यू शुड कंसीडर स्ट्रक्चर्स एंड देयर अरेंजमेंट्स। अब स्ट्रक्चर्स कौन सी? वही वाली 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स, एंड देन कलर इज डिसरिगार्डेड। अगर आपको ज्यादा पैटर्न्स नजर आए तो आपने स्ट्रक्चर्स को वेटेज देना है, द कलर इज डिसरिगार्डेड। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट द स्लाइड्स, सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग डाउन। आप इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें। One pattern, one color, the lesion is symmetrical. One pattern, more colors could be symmetrical or non-symmetrical. But if there are more than more patterns, तो फिर आपको structures को देखना है. You will disregard the color. Step 2. So you have seen the patterns and the colors. Go to step 2. This is symmetry. अब सिमिट्री कैसे हम डिसाइड करते हैं? इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कलर्स, कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से कलर में है, किस अरेंजमेंट में है। लीजन की शेप चाहे गोल हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे कैसी भी हो, डजंट मैटर। अब इस लीजन में एज यू कैन सी देयर आर ब्राउन क्लॉट्स, देयर आर फ्यू, द बैकग्राउंड इज स्ट्रक्चरलेस एंड देयर इज द पैटर्न ऑफ क्लॉट्स। अब मैंने पैटर्न ऑफ क्लॉट्स इसलिए कहा है कि मोर देन 20% एरिया के ऊपर है ये, ऑलमोस्ट होल ऑफ द लीजन इज हैविंग स्कैटर्ड ग्लोब्यूल्स, तो डॉट्स भी हैं, ग्लोब्यूल्स भी हैं, तो इसमें जो है ये पैटर्न ऑफ क्लॉट्स है। पैटर्न ऑफ क्लॉट्स अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रक्चरलेस एरिया, और कलर कौन सा है? ब्राउन है। ये सारा डार्क ब्राउन कलर के सारे ये क्लॉट्स हैं, और बैकग्राउंड भी सिंगल कलर का है, कोई इसमें हिट्रोजेनिटी नहीं है, कोई इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट सीम्स प्रिटी सिमेट्रिकल, सो वी डिसाइड दैट द लीजन इज सिमेट्रिकल। अब मैं बहुत सारे इमेजेस दिखाने वाली हूँ और आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें इन ऑर्डर टू डिसाइड फॉर सिमेट्री और नॉन सिमेट्री। तो ये जो लीजन है, इफ यू लुक एट इट, द पैटर्न इज स्ट्रक्चरलेस इन द सेंटर, हाउएवर ग्लोबुलर एट द पेरिफेरी, थ्रू आउट द पेरिफेरी। अब इसने छोटे से पार्ट पे अगर कोई ग्लोब्यूल नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। प्रैक्टिकली द लीजन इज सिमेट्रिकल। इसको अगर आप देखें तो इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे दैट देयर इज अ पैटर्न ऑफ लाइंस
the lines are converging, structureless area extending to the periphery, variation in color, okay, variation in color, light brown, dark brown. So obviously the lesion is asymmetrical. Now this lesion, अब हम quickly जाएंगे pattern of clods. Pattern clods का है against a structureless background में light brown color है, लेकिन ऊपर जो है बहुत सारे colors हैं. अब अगर more patterns हों तो हमने color को disregard करना था. ठीक है जी, तो pattern ज़्यादा है, clods का भी है, structureless भी है, तो color को आप disregard करेंगे. Lesion is symmetrical. This lesion is symmetrical. This lesion is non-symmetrical. Structureless area, shiny white lines, short white lines, crystalline या shiny white lines. इसके बाद फिर आप ये देखें there is variation in the color और आपको यहाँ पे periphery में dots नजर आ रहे हैं that are isolated from the main lesion और यहाँ पे आपको atypical network नजर आ रहा है नीचे. So this is an asymmetrical lesion.